شہر حیدرآباد میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ہفتے کی شام کئی علاقوں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری ہوئی ہے۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع اور شہر حیدرآباد میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ہفتے کی شام شہر کے کئی علاقوں جیسے نامپلی، راجندر نگر، چار مینار، ٹولی چوکی، ملک پیٹ، ایل بی نگر، سکندرآباد، کونڈا پور، میاں پور، کوکٹ پلی، قطب اللہ پور، شیر لنگم پلی، چندر نگر، خیرتآباد، مادھا پور، گچی بالی، مہدی پٹنم، بنجارہ ہلز، جوبلی ہلز، بہادر پورہ، فلک نما سمیت دیگر علاقوں میں زوردار بارش کے ساتھ ژالہ باری ہوئی ہے۔ شہر کے مضافات میں ژالہ باری یوں تو عام سی بات ہے، لیکن آج ہونے والی ژالہ باری نے عوام میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ گاڑی چلانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا، خاص طور پر موٹر سائیکل سواروں کو کافی مشکلات پیش آئی۔ بعض علاقوں سے اولے گرنے کے سبب کھڑکیوں اور گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ جانے کی اطلاعات بھی ملی ہیں۔ غیر موسمی بارش کے سبب شہریان کو گرمی سے چھٹکارا ملا ہے۔ موسم خوشگوار ہے، تاہم سڑکیں زیر آب آ جانے، ٹریفک جام ہو جانے، نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہو جانے اور برقی منقطع ہو جانے سے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ خاص طور پر مصروف ترین علاقوں میں شام کے اوقات میں بارش کے سبب ٹریفک خدمات بری طرح سے متاثر دیکھی جا رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 48 گھنٹوں میں مزید بارش کا امکان جتایا ہے اور عوام کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KTR نے واضح کیا ہے کہ TSPSC پیپر لیک ہونے کے لیے سسٹم نہیں بلکہ 2 لوگ ذمہ دار ہیں۔ KTR نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق سسٹم ہیک نہیں کیا گیا تھا، بلکہ 2 افراد کے لالچ اور غلطی کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نوجوانوں کے درد کو سمجھتے ہیں جنہوں نے امتحانات میں شرکت کی اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس واقعے کو بدقسمتی کا واقعہ قرار دیتے ہوئے IT وزیر نے کہا کہ ریاست کی تشکیل کے بعد سے TSPSC نے 99 امتحانات کا انعقاد کیا۔ 4.5 لاکھ سے زائد امیدواروں نے امتحانات میں شرکت کی۔ گزشتہ 8 سالوں میں TSPSC کے خلاف ایک بھی الزام نہیں لگایا گیا۔ نوجوانوں کو BRS رہنما نے مشورہ دیا ہے کہ وہ چند سیاستدانوں کے سیاسی مفاد کے لیے کیے گئے تبصروں سے مشتعل نہ ہو۔ انہوں نے سوالیہ پرچہ لیک معاملے میں ملوث افراد چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا تیقن دیا ہے۔ موجودہ جج کے ذریعے معاملے کی تحقیقات کروانے کے BJP کے مطالبے پر IT وزیر نے کہا کہ SIT نے ابھی تک اپنی تحقیقات مکمل نہیں کی۔ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ لوگوں خاص طور پر نوجوانوں میں خوف کیوں پیدا کیا جا رہا ہے۔ DGP تلنگانہ انجنی کمار سے BRS کارگزار صدر نے گزارش کی ہے کہ اگر حکومت کو بدنام کرنے اور نوجوانوں کو مشتعل کرنے کے لیے یہ سازش کی گئی ہے تو اس کی تحقیقات کرائی جائے۔ KTR کے مطابق دوبارہ امتحانات کی تیاری کے لیے حکومت نے امیدواروں کو مفت مٹیریل فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ منسوخ کیے گئے تمام 4 امتحانات کا مواد بھی آن لائن مفت دستیاب رہے گا۔ Navina, I know you've written Group 1 prelims. You are very anxious about it. I understand it. I understand the anxiety of not just you, but the lakhs of children, lakhs of students and others who have written the exam. My humble request to you and through you to the entire media and to the youth of this Telangana is, 2 people have committed mistakes. 2 individuals have done fraud. Please don't ascribe it to the entire institution of TSPSC. There will be, pursuit of excellence, scope for improvement is always there. PSC lo inka evana marpulu cherpulu cheyala, yes cheyali. Inka refine cheyala, cheyali. Can we use technology better? Yes. Can we make it foolproof? Yes. It's a constant pursuit. We will do it. All we are saying is, this is just the day one. So let us, I've just announced what we are doing in lieu of exams to be reconducted, what kind of support will be given to the students, etc. Other measures that will have to be taken will be taken. Please wait. شہر حیدرآباد کے بیگم پیٹ علاقے میں نامعلوم لوگوں نے کویتا کے دہلی شراب گھوٹالے کے پوسٹرز میٹرو ستون پر چسپاں کر دیے۔ تلنگانہ کی حکمران جماعت کی جانب سے کئی مسائل پر مرکزی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے شہر بھر میں پوسٹر کا استعمال کیا جا رہا تھا، لیکن اس بار حیدرآباد میں BRS مخالف پوسٹرز دیکھے گئے۔ پوسٹروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دہلی شراب گھوٹالے میں تحقیقات کا سامنا کر رہی یہ کویتا کو نشانہ بنایا ہے اور ED تحقیقات کا سامنا کرنے کے اس واقعے کو شرمناک قرار دیا گیا ہے۔ ان پوسٹروں کے آویزاں کیے جانے کے بعد سے مانو ایک ہلچل سی مچ گئی ہے۔ اس معاملے کا علم ہونے پر پولیس نے وہاں پہنچ کر پوسٹرز کو ہٹا دیا اور خبردار کیا ہے کہ CCTV کیمروں کی جانچ کرتے ہوئے متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि मना बस्ती मना बड़ी स्कीम के तहत तरक्याती कामों को मई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचा मुहैया करवाते हुए तलबा को खुशगवार माहौल फराहम कराने के मकसद से शुरू किए गए मेरा इलाका मेरा स्कूल प्रोग्राम के कामों पर तलासानी श्रीनिवास यादव की सदारत में नारायणगुड़े के केशवा मेमोरियल में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस स्कीम के लिए 7 करोड़ से जायद के फंड्स मख्तस किए गए हैं। पहले मरहले में हैदराबाद के 239 स्कूलों में तरक्याती काम जारी हैं। वजीर ने बताया कि माजी में किसी हुकूमत ने स्कूलों की तरक्की के लिए इतनी बड़ी रकम मख्तस नहीं की थी। उनका कहना है कि हुकाम को बिलों की अदम अदायगी पर सरकारी स्कूलों में बरखी सरबराही मुनक़ता न करने की हिदायत भी जारी की गई है। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, गवर्नमेंट व्हिप MLC सुरभि वानी देवी, MLA दानम नागेंद्र के अलावा दीगर ने शिरकत की। महकमे GHMC की जानिब से शहर के पुराना पुल पर मौजूदा तजावुजात को हटाने की कोशिश के सबब वहां कशीदगी देखी गई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पुराना पुल की तज़यीन व आराइश और उसे खूबसूरत बनाने का मंसूबा रखता है। इसी के चलते हफ्ते के रोज GHMC ओहदेदारों ने महकमा ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के हमरा वहां पहुंचकर तजावुजात को बर्खास्त करने की कोशिश की, ताहम मुकामी अफराद की जानिब से इसकी मज़ाहमत की गई। उन्होंने बताया कि वो पुराना पुल पर कई दहाइयों से कारोबार कर रहे हैं। उनके पास GHMC और QQUS NDA के जारी करदा शनाख्ती कार्ड भी मौजूद हैं। इसी बीच एहलकारों और वहां कारोबार करने वाले अफराद के दरमियान बहस व तकरार भी हुई। एहलकारों के कब्जाजात को हटाए जाने पर लोगों ने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। इतला मिलने पर BRS और AIMIM वर्कर्स भी वहां पहुंचे। अक़लियती मुशीर बराए हुकूमत तेलंगाना व टिमरीज के सदर AK खान ने टिमरीज तलबा के इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहानात के दौरान AK खान ने टोली चौकी में कायम किए गए इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया और तलबा से गुफ्तगू की। उन्होंने तलबा को अपने कीमती मशवरों से नवाजा, उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर तलबा ने टिमरीज सदर से इम्तिहानी मराकज़ पहुँचकर उनसे मुलाकात करने, उनकी हौसला अफजाई करने पर मसरत का इजहार किया और उनका शुक्रिया भी अदा किया। 10वीं जमात और इंटरमीडिएट ये दोनों एक तलबा के ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखते हैं, इसलिए कि जो मार्क्स यहाँ हासिल होते हैं इसके बुनियाद पर आइंदा चलकर कौन से कोर्सेस लेना है, इनको कौन से कोर्सेस में दाखिला मिलेगा, ये बात तय होती है। तो इसलिए टिमरीज में हम लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं 10th के और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स के लिए। इंटर के एग्ज़ाम्स तो शुरू हो चुके हैं, अब तक 2 पेपर्स मुकम्मल हुए हैं इनके। जहाँ तक मैं जायज़ा लिया हूँ इन बच्चों से, यहाँ पर दोनों पेपर अच्छे गए हैं इनके। हर एक को कॉन्फिडेंस है, यकीन है कि अच्छे मार्क्स के साथ ये 2 एग्ज़ाम्स कंप्लीट करेंगे और 2 दिन के अंदर फिर ग्रुप्स के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ग्रुप्स में जो मार्क्स मिलते हैं उससे इनका हौसला अफजाई भी होता है। अच्छे मार्क्स अगर मिल गए तो उसके बुनियाद पर इनकी तैयारी जो नीट के लिए, MSET के लिए होती है वो भी अच्छी तरह होती है। टिमरीज की तरफ से तो हम लोग कम से कम 4, 5, 6 महीने से इनके लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस, सुपरवाइज्ड क्लासेस ये सब चला रहे हैं। अच्छे टीचर्स हैं हमारे पास, लेक्चरर्स हैं, स्टडी मटेरियल भी फराहम किया गया है, बेहतरीन स्टडी मटेरियल है इनके पास। ये जो अच्छी टीचिंग है, साथ ही साथ अच्छा मटेरियल है और बच्चे भी अच्छा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि नताइज बहुत बेहतर होंगे। गुज़िश्ता साल, इससे पहले साल भी अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं हमारे पास, तो इससे भी बेहतर रिज़ल्ट्स आएंगे। हर साल इसमें अफजाई होती जाएगी और अच्छे रिज़ल्ट्स आते जाएंगे। तो यही बात है। जो वोकेशनल कोर्सेज़ के तलबा जो हैं उनके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं और इनके 3 पेपर्स बहुत ही अहम हैं। ये पेपर्स में मार्क्स आने के बाद जो नॉलेज बेस बनता है, उसके बुनियाद पर हैदराबाद में जो इंडिया का मेडिकल सेंटर कहलाता है, यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं और टेक्नीशियंस की बहुत डिमांड है इधर। ऐसे टेक्निकल कोर्सेस में भी बाहर वर्कशॉप्स में हो और बड़े बड़े शोरूम्स में, यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं समझता हूँ कि वोकेशनल कोर्सेज जो करके बाहर निकल रहे हैं
एयर कंडीशनिंग हो, मैकेनिकल हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी में, इनके लिए भी अच्छे जॉब्स के रास्ते खुले हुए हैं। इनके वहाँ भी ये अच्छे पोजीशंस हासिल कर पाएंगे। इंग्लिश के तरफ से हम सबके तरफ से इनको हम मुबारकबाद देते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा एग्ज़ाम जो बाकी हैं इसमें भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ये उम्मीद करते हैं और इसी बात की दुआ भी करते हैं। दत्तापेट के सरबरा गणपति सच्चिदानंद स्वामी ने यदाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के दर्शन किए हैं। लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के मंदिर पहुंचने पर वजीर इंदिरा करण रेड्डी और मंदिर हुकाम ने सच्चिदानंद स्वामी का शानदार इस्तकबाल किया। इंदिरा करण रेड्डी और उनके अफराद खानदान ने स्वामी का आशीर्वाद भी हासिल किया। बाद अज़ां उन्होंने यदाद्री मंदिर और अतराफ व अकनाफ का तफसीली जायजा भी लिया। हल्का असम्बली नामपल्ली के AIMIM रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए रमजान की तैयारियों का जायजा लिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर MLA जाफर हुसैन मेराज ने पार्टी के हेडक्वार्टर दारुसलाम में रमजान के महीने में रोजेदारों की सहूलत के लिए JHMC बरकी आब रसानी के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने हल्के नामपल्ली के तमाम इलाकों में बिला तातुल बरकी और आबी सरबराही को यकीनी बनाने की हुकाम को हिदायत जारी की। ज़ेर इल्तिवा कामों को भी जल्द अज जल्द मुकम्मिल कर लेने को कहा। मजलिस के तमाम कॉरपोरेटर सीनियर लीडर्स ने इजलास में शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए जाफर हुसैन मेराज ने इस सिलसिले में तमाम तफसील बताई है। मगर रमज़ान का महीना जो आ रहा है, रमज़ान के महीने के अंदर जो दुश्वारी होती है, जैसा मस्जिदों के अप्रोच रोड को अगर कोई डैमेज है तो उसको ठीक करना है, मस्जिद के अप्रोच रोड में अगर कोई सीवरेज लाइन बढ़ती है तो उसके लिए, और रमज़ान के महीने में इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन नहीं होना इसके लिए, और मस्जिदों को स्पेशल तौर के ऊपर वाटर टैंक सप्लाई करने के लिए, और भी तमाम चीज़ों के लिए जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, JHMC हो, वाटर वर्क्स हो, हॉर्टिकल्चर हो, वेटरनिटी हो, तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को बुलाकर यहाँ पर एक मीटिंग ली गई, जिसमें मैं और मेरे साथ में नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर्स मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब के रमज़ान के अंदर नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चाहे मैं हो, मेरे कारपोरेटर हो, हमारे सदर मोतमदीन हो, सारे के सारे एक्टिव रह के कोई कंप्लेंट नहीं आए, वैसा पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। AIMIM जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने असम्बली हल्के के इस्तिफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक चेक्स तकसीम किए। सरबरा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLA अहमद पाशा खादरी ने अल हुस्ना फंक्शन हॉल में मुनक्किद तकरीब में इस्तिफादा कुनिंदगान को शादी मुबारक के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर तमाम कॉरपोरेटर्स बशमूल नसरीन सुल्ताना, मोहम्मद वासिउद्दीन, मुजफ्फर हुसैन, शफात अली, डॉक्टर समीना, अलमदार वाला वजाही के अलावा इब्तदाई मजलिस के सुदूर व दीगर भी मौजूद। पुलिस ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चा अफशा होने के मामले के खिलाफ BSP रियासती सदर डॉक्टर प्रवीण कुमार की भूख हड़ताल को खत्म करवाते हुए उन्हें तहवील में ले लिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मामले को लेकर एहतजाज जारी है। हालांकि कमीशन ने इम्तिहानात मंसूख किए हैं, ताहम चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने को लेकर एहतजाज किया जा रहा है। चेयरमैन को बर्तरफ करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। तेलंगाना BSP सदर डॉक्टर प्रवीण कुमार ने तलबा के साथ इंसाफ करने, मामले की मौजूदा जज से तहकीकात करवाने का मुतालबा करते हुए दूसरे रोज भी भूख हड़ताल की। ताहम पुलिस ने मुदाखलत करते हुए भूख हड़ताल को खत्म करवाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब BSF OU जैक की क़यादत में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी से आर्ट्स कॉलेज तक एहतजाजी रैली निकाली गई। तलबा यूनियनों के रहनुमाओं ने कहा है कि बियाज कायदीन के TSPSC मामले में मुलविस होने की वजह से हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने जनार्दन रेड्डी से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर रियासत की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में बड़े पैमाने पर तहरीक चलाने का इंतबाह किया। पुलिस ने एहतजाज करने वाले तलबा को गिरफ्तार करते हुए OU पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। शेर हैदराबाद पुलिस ने 17 लाख रुपए पर मुश्तमिल हवाला रकम जब्त करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक काचीगुड़ा पुलिस की जानिब से काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के करीब गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई गई। इस दौरान पुलिस ने 17 लाख रुपए पर मुश्तमिल हवाला रकम की
निशानदेही की। बताया गया है कि बड़ी चौड़ी के रहने वाले हरि नारायण कोठारी और काटेदान के सोहेल के दरमियान रकमी लेन देन को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए नकद रकम जब्त कर ली और महकमा IT को मतला किया। मुलजिमान को हिरासत में लेकर काचीगुड़ा पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ तहकीकात है। चंदनगर पुलिस ने साइबर क्राइम में मुलविस 2 साइबर क्रिमिनल्स को हिरासत में ले लिया है। DCP माधापुर शिल्पावली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एनीडेस्क जैसी बहुत सी ऑनलाइन ऐप्स के जरिए ये टोली लोगों को धोखा दे रही थी और झारखंड की टोली के साथ मिलकर इस टोली ने 1800 साइबर क्राइम अंजाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि टोली के दीगर अफराद मफरूर हैं, उन्हें तलाश किया जा रहा है। मुलजिमान के कब्जे से 10 लाख रुपए मालियत के 3 लैपटॉप, 15 मोबाइल फोन, 1 यामाहा मोटरसाइकिल, 1,40,000 रुपए नकद रकम बरामद कर ली गई है। DCP ने साइबर क्राइम में इजाफे का सबब शऊर की कमी और लालच बताया है और आवाम से पुरजोर अपील की है कि वो ఆన్లైన్ యాప్స్కి धोखाधड़ी से खबरदार रहें। PS పరిధిలో జరిగినటువంటి సైబర్ క్రైమ్ ఆఫెన్సెస్లో అక్యూజ్డ్గా ఉన్నటువంటి 2 పర్సన్స్ని క్రైమ్ టీమ్ ఆఫ్ చందనగర్ పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళిద్దరే కాకుండా A3 జువపేర్ అలియాస్ రాహుల్ అని చెప్పి ఇతను జార్ఖండ్కి చెందిన అతను కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళు కస్టమర్స్కి ఫోన్ చేసి ఈ ఎనీడెస్క్ యాప్, క్విక్ సపోర్ట్ యాప్ ఇట్లాంటి యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేయించి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అమౌంట్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ రకంగా వాళ్ళు చేసినటువంటి సుమారు 41 కేసెస్ మన దగ్గర వేరియస్ పోలీస్ స్టేషన్స్లో అక్రాస్ ద స్టేట్, అక్రాస్ ఇండియా కూడా రిపోర్ట్ అయి ఉన్నాయి. రిపోర్ట్ అవ్వనివి చిన్న చిన్న అమౌంట్స్ పోయి కేసు అవ్వనివి దగ్గర ఒక 1500 to 1700 వరకు ఉంటాయి. వీళ్ళల్లో A1 వేముల నాగప్రేమ్ అని చెప్పి 21 ఇయర్స్ అమెజాన్ సెల్లర్గా పనిచేస్తూ ఉంటాడు. తర్వాత బనవత్ కుమార్ అని చెప్పి 20 ఇయర్స్ అమెజాన్ ప్యాకింగ్ సర్వీసెస్లో చేస్తూ ఉంటారు. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कागज नगर टाउन प्रेसिडेंट अब्दुल मुबीन पर मुश्तमिल एक वक्त ने DSP कागज नगर करुणाकर से मुलाकात करते हुए माह रमजान के खुसूस में उन्हें एक याददाश्त पेश की है। सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर टाउन प्रेसिडेंट अब्दुल मुबीन, जनरल सेक्रेटरी जावेद मलनाज अराकी ने मजलिस पर मुश्तमिल वफ्द ने DSP कागज नगर करुणाकर से मुलाकात की। 23 मार्च से माह रमजान मुबारक की आमद के पेश नज़र दुकानात, होटल ने रात 12 बजे तक खुले रहने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की। वफ्द ने रमजान के महीने में इफ्तार के औकात बिलखुसूस शाम 5 बजे से 7 बजे तक पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल और 4 पहियों वाली गाड़ियों की तलाशी लेते हुए मकीनों को परेशान न करने पर भी जोर दिया है। DSP कागज नगर ने मजलिसी वक्त को कहा है कि पुलिस की जानिब से मुकम्मल ताउन किया जाएगा। उन्होंने इस खुसूस में मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि बार बार तवज्जो दहानी के बावजूद मरकज़ी हुकूमत इस प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा नहीं दे रही है और इस मामले में झूठी तशहीर कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में इस सिलसिले में गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि कई मरतबा इस प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा देने के लिए मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्तें की गई, ताहम इन दरख्वास्तों को नज़रअंदाज किया गया और सियासी मखासिमत पर मरकज़ ने इस प्रोजेक्ट को हनूज ये दर्जा नहीं दिया है। ग्रुप 1 प्रीलिम इम्तिहान को मनसूख कर दिया गया है। ये इम्तिहान अब 11 जून को होगा। AE और DAO इम्तिहान को भी मनसूख कर दिया गया है। इम्तिहानी पर्चों के अफशा के मामले के मंजर-ए-आम पर आने के बाद तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस सिलसिले में फैसला किया। कबलजी दरख्वास्तें दाखिल करने वाले तमाम अफराद को अहल करार दिया गया है। SIT की रिपोर्ट के बाद कमीशन ने ये बयान जारी किया है। मीरालम फिल्टर इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। आग से गोदाम में रखी 2 DCM वैन्स जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हो गई। इस आग के नतीजे में मुकामी अफराद में खौफ का माहौल देखा गया, जो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। आग के साथ कसीब धुआं भी काफ़ी दूर से नज़र आ रहा था। आज सुबह पेश आए इस वाक़े की वजह मालूम न हो सकी। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ है। आग के साथ ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इत्तला दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया।
CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इस यकीन का इजहार किया है कि आइंदा 6 माह में तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी, जिसके बाद अवाम के मसाइल हल किए जाएंगे। उन्होंने अवामी मसाइल से वाकिफियत और पार्टी को निचली सतह से मुस्तहकम करने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जिला आदिलाबाद में जारी रखी। आदिलाबाद में मुख्तलिफ मकामात का उन्होंने दौरा किया और अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक कर्नल विनय भानु की नाश यादाद्री जिले में उनके आबाई गांव बोमालारम में लाई गई। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों के साथ साथ मुकामी अफराद ने उनका आखिरी दीदार किया और उनकी खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर गांव में गम की लहर देखी गई। वजारत दिफा ने एक गज़ट जारी करते हुए सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात को मनसूख कर दिया है। वाज़ेह है कि मरकज़ ने मुल्क के 57 कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के सिलसिले में एलानिया जारी किया था। ये एलानिया जारिया साल 17 फरवरी को जारी किया गया था। इसने 30 अप्रैल को इंतखाबात का ऐलान किया था। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के 8 वार्ड से 2015 में सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात मुनक़िद किए गए थे। मौजूदा कंटोनमेंट बोर्ड की मियाद फरवरी 2020 को ख़त्म हो गई, जिसके बाद मरकज़ ने एक रुकन को नामज़द किया। बताया जाता है कि नामज़द अरकान ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात 6 माह तक के लिए मुलतवी करने की ख्वाहिश की, जिसके बाद वजारत दिफा ने इन इंतखाबात को मनसूख करने का ऐलान किया। PFI मामले में मुलजिम बनाए गए 4 अफराद को NIA ने अपनी तहवील में ले लिया। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने जाहिद, समीउद्दीन, माजिद हुसैन और कलीम को अपनी तहवील में ले लिया। बसंतगुड़ा जेल से उन्हें तहवील में लिया गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए पहली भारत गौरव ट्रेन सिकंदराबाद से रवाना हुई। इस ट्रेन के जरिए मुसाफिरीन मुल्क की शुमाल मशरक़ी रियासतों के मजहबी, तारीख़ी और सक़ाफ़ती मक़ामात के लिए रवाना हुए। इस ट्रेन के सिलसिले में बेहतर अवामी रद्द अमल हासिल हुआ है। दोनों रियासतों के लिए अगली ट्रेन 18 अप्रैल को रवाना होगी। दतिया जिले के मटपल्ली में 4 मकानात में एक साथ चोरी की वारदात पेश आई। बादशाह चोर मार्केट में तरकारी की एक दुकान में दाखिल हुए और वहां भी चोरी की वारदात अंजाम दी। चोरों का फुटेज करीबी CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस बात की शिकायत पुलिस से की गई, जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी। पेद्दापल्ली जिले के रामगीर इलाके में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ पुलिस का बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। शी टीम्स लड़कियों से छेड़छाड़, रैगिंग और हरासानी से मुताल्लिक़ तालिबात में बेदारी पैदा की गई। रामागुंडम की कमिश्नर पुलिस रीमा राजेश्वरी इस मौके पर मेहमान खुसूसी थी। उन्होंने कहा कि हरासानी पर पुलिस से शिकायत की जाए। इस प्रोग्राम में तालिबात और पुलिस की कसीर तादाद में हिस्सा लिया। खम्मम की मेयर नीरजा ने बीजेपी लीडर P श्रीनिवास रेड्डी और उनके हामियों पर शदीद तनकीद की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खम्मम में तरक्याती काम अगर नजर नहीं आ रहे हैं तो आंखों की रोशनी प्रोग्राम के कैंप जाकर आंखों का मुआयना करवाया जाए। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों पर नामुनासिब बयानात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में अवाम सबक सिखाने के लिए तैयार है। జరగలేదు అని చెప్పి కించపరచడం మీకే తగింది। అది మీరు ఏమనుకుంటున్నారు, ఏం మాట్లాడుతున్నారు? మీరు అభివృద్ధి జరగలేదా? నిక్కర్లు వేసుకున్నప్పుడు అభివృద్ధి జరిగిందా? ఏంటి మీకు కళ్ళు లేవా? ఒక్కొక్కరికి కళ్ళు కనిపించట్లేదా? ఏమనుకుంటున్నారు? కళ్ళుండి కబోదుల్లాగా మాట్లాడుతున్నారు. మా కేసీఆర్ గారు కంటి వెలుగు కార్యక్రమం పెట్టారు, దాంట్లోకి వచ్చి కళ్ళు చూపించుకోండి ఒకవేళ కనిపించట్లేదేమో। మా కార్పొరేటర్లు ఏదో మీకు టచ్లో ఉన్నారా? महकमा मौसमियात ने आज तेलंगाना में शदीद बारिश की पेश क़यासी की है। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा है कि मुकम्मल तेलंगाना बशमूल हैदराबाद के कई इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश होगी। गुज़िश्ता 3 दिन से जारी बारिश के नतीजे में कई मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा होने की भी शिकायत मौसूल हुई है।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT जयेश रंजन ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत CIES की मदद कर रही है ताकि स्टार्टअप तहरीक के लिए वो माविन बन सके। एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप में इसको अहम समझा जा रहा है। हिंदुस्तान में हफ्ते के रोज कोरोना वायरस के 843 मामला दर्ज किए गए, जबकि 4 अफराद हलाक हो गए। H3N2 के मामलात में इजाफे के साथ साथ अब कोरोना मुतासिन की तादाद में भी हिंदुस्तान में इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क में 24 घंटों में 843 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। महकमा सेहत ने बताया है कि एक्टिव केसेस की तादाद 5379 हो गई है। मुल्क में कुल कोरोना वायरस केसेस की तादाद 4,46,49,349 रिकॉर्ड की गई है। रियासत केरला में 2, झारखंड और महाराष्ट्र में एक मौत से कुल हलाकतों की तादाद 5,30,799 तक पहुंच गई है। माहिर सेहत का कहना है कि तेजी से फैलने वाला XBB.1 का वेरिएंट XBB.1.16 हिंदुस्तान में कोरोना केसेस में इजाफे का सबब हो सकता है। इसी तनाजुर में आवाम को एहतियाती तदाबीर बरतने, कोरोना टीका लेने, मास्क का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।